बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है great debates in criminal justice system. Should the crime control model or the due process model prevail? Herbert Packer, a Stanford University law professor, constructed two models. Number one, crime control model, due process model, to represent the two competing systems of values operating within criminal justice system. The tension between the two accounts for the conflict and disharmony that now is observable in the criminal justice system. The crime control model should prevail. Number one, the repression of crime should be the most important function of criminal justice because order is a necessary condition for a free society. Number two, criminal justice should concentrate on vindicating victims' rights rather than to protecting defendants' rights. Number three, police powers should be expanded to make it easier to investigate, arrest, search, seize, and convict. Number four, legal technicalities that handcuff the police should be eliminated. Number five, the criminal justice process should operate like an assembly line conveyor belt, moving cases swiftly along toward their disposition. Number six, if the police make an arrest and the prosecutor files criminal charges, the accused should be presumed guilty because the fact finding of police and prosecutor is highly reliable. Number seven, the main objective of the criminal justice process should be to discover the truth or to establish the factual guilt of the accused. ये है क्राइम कंट्रोल मॉडल. अगर इसको पूरे को गो थ्रू करें तो क्राइम कंट्रोल मॉडल कहता है कि जो क्राइम है उसको हमने हर हाल में रोकना है और क्रिमिनल जस्टिस वही सिस्टम बेहतर है जो क्राइम को रोकता है. नंबर दो, वो ये कहता है कि विक्टिम्स के राइट्स होते हैं, डिफेंडेंट्स के राइट्स नहीं होते. नंबर तीसरी बात ये कहता है कि पुलिस स्टेट की बात करता है, पुलिस पावर्स की बात करता है. पुलिस को ऑल इन ऑल हैंड दिया जाए, वो जो चाहे करे, जिस तरह चाहे इन्वेस्टिगेट करके निकाले, जिस तरह अरेस्ट करे, सर्च करे, सीज करे, कन्विक्ट करे. जो पुलिस करे वो 100/100 सही है. ये क्राइम कंट्रोल मॉडल. जो टेक्निकलिटीज हैं कि पुलिस हैंडकफ नहीं करेगी, लोगों को हाथ से बांधेगी नहीं, वो खत्म की जाए. तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो क्राइम कंट्रोल मॉडल कहता है कि वो इतना स्विफ्टली चले कि वो डिसीजन तक फौरन पहुंचे, उसको डिले और प्रोलॉन्ग ना करे. पुलिस जो अरेस्ट कर दे, जो डिसाइड कर दे है वही सही है, वही रिलायबल है, वही ठीक है. उसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जाएगा और चैलेंज किया भी जाएगा तो भी पुलिस रिलायबल रहेगी. सातवां पॉइंट ये कहता है जो क्रिमिनल जस्टिस है वो डिस्कवर करता है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ट्रुथ को डिस्कवर करता है और एस्टेब्लिश करता है जो फैक्चुअल गिल्ट है ऑफ द अक्यूज्ड. जो फैक्चुअली जो गिल्ट है उसको The next is the due process model should prevail. The most important function of criminal justice should be to provide due process or fundamental fairness under the law. Criminal justice should concentrate on defendants' rights, not victims' rights, because the Bill of Rights expressly provides for the protection of the defendants' rights. Number three, police powers should be limited to prevent official oppression of the individual. Number four, constitutional rights are not merely technicalities. Criminal justice authorities should be held accountable to rules, procedures, and guidelines to ensure fairness and consistency in the justice process. Number five, the criminal justice process should look like an obstacle course consisting of a series of impediments that take the form of procedural safeguards that serve as much to protect the factually innocent as to convict the factually guilty. Number six, the government should not hold a person guilty solely on the basis of the facts. A person should be found guilty only if the government follows legal procedures in its fact finding. जो ड्यू प्रोसेस मॉडल है वो राइट्स देता है, सबको राइट्स है, भले वो विक्टिम है या ऑफेंडर है, भले वो विक्टिम है या डिफेंडेंट है, सबके राइट्स है. उन तमाम को राइट्स देता है और उनको ड्यू प्रोसेस में चलाता है. वो दूसरी बात ये करता है कि डिफेंडेंट्स की भी राइट्स हैं, उसको राइट्स दिए जाए. विक्टिम्स की नहीं है, सिर्फ डिफेंडेंट्स की भी राइट्स, वो भी राइट्स दिए जाए.
ताकि सच सामने आ सके। पुलिस की पावर को लिमिटेड किया जाए, इतनी ज्यादा बढ़ा नहीं दी जाए कि वो जो चाहे करें, जो चाहे कहें, जिसको चाहे पकड़ें, लोगों को दबाएं, लोगों को बाय फोर्स करें कि नहीं ऐसा माने आप। चौथी ड्यू प्रोसेस कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हुए हैं उसमें जो राइट्स दिए हैं उसके तहत सिस्टम को चलाएं, जो इदारे हैं उनके रूल्स रेगुलेशन और प्रोसीजर्स हैं वो उनको फॉलो करके चलें, और एक फेयरनेस और कंसिस्टेंसी आए जस्टिस के प्रोसेस के अंदर। वन मैन शो नहीं है वो, एक प्रोसीजर से रेगुलेशन से वो गुजरी हो चीज सारी, उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई हैं उन पे केस को क्लोज किया जाए या केस के हवाले से कोई चीज सामने लाई जाए कंक्रीट फॉर्म में। दूसरा वो कहता है कि आगे वो कहता है जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं कि हमने प्रोटेक्ट करना है इनोसेंट को, और गिल्टी करना है जो कन्विक्ट है उसको, फैक्चुअली जो गिल्टी है उसको कन्विक्ट करना है, और हमें बचाना है जो इनोसेंट है, फैक्चुअली इनोसेंट है। जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी बाउंडिंग्स हैं ड्यू प्रोसेस में। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल ली जाती है कि एक बंदे ने अपनी जान बचाने के लिए कहीं चोरी करके खाया, जिंदा रहने के लिए कुछ खाना जरूरी है, उसके पास इतने भी पैसे नहीं तो जिसको चोरी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो जब पूरा नहीं कर पा रही, सोसाइटीज की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो इन तमाम चीजों को भी ड्यू प्रोसेस में रह के समझा जाए। ये नहीं कि कोई पर्सन गिल्टी है तो उसको बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिल्टी कर दिया जाए, नहीं, उस पूरे चीज की, उस पूरे मामला की मुकम्मल तरीके से जांच पड़ताल की जाए, तो ये भी देखा जाए कि इसके कितने राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं, कितने रुके गए हैं। ड्यू प्रोसेस इट्स ऑल अबाउट राइट्स, ये राइट्स की बात करता है। ये सोसाइटी को लिबरल बुनियादों पे चलाने की बात करता है, और ये एवोल्यूशन की बात करता है। ये एकदम से चीज़ों को नहीं, धीरे धीरे चलाने की बात है, आगे बढ़े धीरे धीरे, इवॉल्व हो, बेहतर से बेहतर। अच्छा, evaluating the crime control and due process model. क्राइम कंट्रोल मॉडल कंजर्वेटिव वैल्यूज की बात करता है, ड्यू प्रोसेस मॉडल लिबरल वैल्यूज की बात करता है। अच्छा, अब इस दोनों मॉडल को पॉलिटिकल गवर्नेंस से कैसे किया जाए, ये भी एक बड़ा एक खूबसूरत डायमेंशन है समझने की। अगर पॉलिटिकल क्लाइमेट डिटरमाइंस व्हिच मॉडल शेप्स क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी एट अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग द पॉलिटिकल, in UK की एग्जांपल दी है, during the political liberal 1960s, the principles and policies of due process predominated in criminal justice. From the mid 1970s to the early 21st, conservatism has held sway as a dominant political philosophy, and conservatives have formulated criminal justice policy in the image of the crime control. तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर पॉलिटिकल सेटअप कंजर्वेटिव बैठा हुआ है तो क्राइम कंट्रोल मॉडल को जाएगा, अगर पॉलिटिकल सेटअप लिबरल बैठा हुआ है, प्रोग्रेसिव बैठा हुआ है, इवॉल्विंग बैठा हुआ है, तो वो ड्यू प्रोसेस पे जाएगा। थैंक यू।